اب ہم بات کریں کہ دنیا میں پیس پریویل کر رہا ہے فائنلی پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے، تو اس امن کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اگر میں لنڈن برینٹ کی بات کروں یا ویسٹ ٹیکسس کی بات کروں 65 68 اس طرح 67 68 پہ تھے، اور پھر ایک دم سے ہائیک کیا اور کہاں پر گئے 2-4 دنوں کے اندر 119 کے اوپر ایک دم سے انکریز ہوا۔ پاکستان میں بھی فیول پرائسز انکریز ہو گئی، لیکن اب جب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اس کے ثمرات آ تو رہے ہیں، لیکن اتنی تیزی سے نہیں آ رہے جتنی تیزی سے وہ انکریز ہوئے تھے۔ مرکزی حکومت اپنا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 74 روپیز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ابھی یہ فرائیڈے گزرا ہے، گزشتہ فرائیڈے کو، اس میں پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں 74 روپیز کا ڈیکریز کیا گیا۔ اگر میں ڈیزل کی بات کروں 67 روپیز پر لیٹر ڈیزل میں کمی کی گئی۔ تو مرکزی حکومت نے تو کر دیا، اب یہاں پر رول آتا ہے مقامی حکومت کا، اے سیز کا، ڈی سیز کا۔ وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ جناب جب پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے بڑھتے تھے، 2 روپے 4 روپے 5 روپے بڑھ جاتے تھے، ساتھ ہی دودھ، دہی، انڈے، اشیاء خوردونوش، سبزیاں، کرائے، موسٹ امپورٹنٹلی فوراً سے اگلے دن ہی رات کو 12 بجے نوٹیفیکیشن آیا ہے، صبح 8 بجے کی جو بسیں ہیں انہوں نے کرائے انکریز کر دیے۔ صبح اٹھ کے آپ ناشتہ لینے جائیں گے، ہر چیز کا ڈفرینٹ ریٹ ہے۔ اب یہاں پر اے سیز کہاں پہ ہیں، ڈی سیز کہاں پہ ہیں، کیوں نہیں امپلائی کروایا جا رہا، کیا ہو رہا ہے، کرائے کم ہوئے ہیں نہیں ہوئے، کتنے کم ہوئے ہیں، جانیں گے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، پشاور اور کوئٹہ سے۔ کراچی سے عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور سے نواب شیر ہیں، اور کوئٹہ سے عبداللہ مقصد نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم سب سے پہلے رخ کر لیں گے کراچی کا۔ عشرت، بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا ٹرانسپورٹ کرایوں میں واضح کمی آئی ہے، اور ساتھ ہی اگر میں اشیاء خوردونوش کا بھی آپ سے پوچھ لوں، اشیاء خوردونوش میں بھی قیمتوں میں کمی آئی ہے کہ نہیں؟ سائم کہاں موجود ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت تاج کمپلیکس، جہاں سے انٹر سٹی جو بسز ہے وہ مختلف پاکستان کے ایریاز میں صوبوں میں جاتی ہیں، وہاں موجود ہوں۔ ایک بات تو ڈن ہے، بلکہ لکھی جا چکی ہے اور اس پہ اسٹیمپ لگ گیا ہے کہ پرائس بڑھے گی، چیزوں کی پرائس بڑھے گی، لیکن پرائس کم ہوگی پیٹرول کی تو چیزوں کی جو پرائس ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ابھی چونکہ میں تاج کمپلیکس میں موجود ہوں اور یہاں چھوٹی بسز جو سندھ کے انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں وہاں جاتی ہیں، جن میں بدین ہے، سکر ہے، لاڑکانہ ہے، حیدرآباد ہے، جن کے جو کرائے تھے 1600 تھے، 1500 تھے، کسی کے 1400 تھے، ایسے ان میں صرف اور صرف 100 روپے کی کمی کی گئی ہے، صرف اور صرف 100 روپے کی، جس کی 1500 ہے وہاں 100 روپے کی کمی کر دی، مطلب آٹے میں نمک کے برابر۔ لیکن جو بڑی بسیز ہے جو دور کے ایریا میں جاتی ہیں، جیسے اسلام آباد ہے، پنڈی سائیڈ ہے، کے پی کے ہے، یا بلوچستان کی سائیڈ ہے، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ آپ نے بتایا ہے کہ صرف 100 روپے کی کرایوں میں کمی کی گئی ہے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فرض کریں 5 روپے 6 روپے کمی کرتی تھی، تب ہم دیکھتے تھے کہ یہ 100 روپے 60 روپے 70 روپے تب کمی ہوتی تھی۔ 74 روپے کمی ہو گئی ہے پر لیٹر پیٹرول کے اندر۔ ابھی بھی کوئی خاطر خواہ نمایاں کمی نہیں ہے ٹرانسپورٹ کرایوں کے اندر، آپ بتا رہی ہیں 100 روپے صرف کم کیے گئے ہیں۔ یہ صاحب میری پوری بات آپ سنیں، یہ صرف اور صرف ہائیسٹ کی بتا رہی ہوں، جو دوسرے سٹیز میں جاتی ہیں، جیسے دور والے ایریاز ہیں، جیسے کہ اسلام آباد ہے، پنڈی سائیڈ ہے، یا پشاور سائیڈ ہے، کوئٹہ سائیڈ ہے، وہاں کی جو بسز ہے، کچھ لگژری بسز ہے جن کی 6500 7000 8000 10000 کرائے ہیں، ان میں ایک پینی کم نہیں ہوا، وہی کرایہ چل رہا ہے جو پیٹرول کی پرائس بڑھی تھی اور کرائے بڑھے تھے، وہی کرایہ شہریوں کا جو دوسرے شہروں میں جانے والے مسافر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو کرایہ یوں چٹکی بجا کے بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن جب کم ہوتی ہے آپ خود سوچیں کہ پر لیٹر 74 روپیز پیٹرول میں کم کیے ہیں، جبکہ 67 پر جو ڈیزل کے حساب سے کم کیے ہیں، اس کے باوجود اگر ایک پینی کم نہیں کیا تو عوام کہاں جائے گی، جبکہ انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے۔ یہ تو ہو گئی نا ٹرانسپورٹ کی بات، یہ تو بڑی دل دکھا ہے آپ کی بات سن کے ٹرانسپورٹ کرایے کے حوالے سے۔ ہمیں ذرا بتائیں دودھ، انڈے، اشیاء خوردونوش، سبزیاں، ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں کہ نہیں؟ دودھ کی جو پرائس ہے وہ 240 روپے پر لیٹر کے حساب سے آپ کو مل رہا ہے، لیکن اس کی پرائس جو ہے وہ بالکل بھی کم نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر دہی کی بات کی جائے تو دہی کہیں 350 روپے کلو اور کہیں 400 روپے کلو ہے، لیکن اس کی پرائس کم نہیں ہوئی۔ ایک مونگ کی دال، چنے کی دال، ماش کی دال، مسور کی دال، ان کی پرائس معلوم کی جائے تو وہ بھی آپ کو 350 سے 400 روپے کلو دستیاب ہوگی، جبکہ یہی جب پہلے کی پرائس اگر معلوم کی جائے تو وہ 250 290 280 270
रुपए दस्तयाब थी। यानी कोई कमी नहीं आई। खातिर खां आप बता रही हैं, हमेशा कराची से हमें रिपोर्ट करिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा रुख कर लेते हैं कोयटा का। कोयटा से अब्दुल्ला मगजी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, कराची में तो ना ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आई है, ना ही कोई अशिया खुरनोश की कीमतों में खातिर खां कमी आई है। कोयटा में क्या हालात है? बिल्कुल जी, अक्सर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ताजिर बिरादरी जितनी में है वो कसूर पेट्रोलियम मसनूआत को ही ठहराता है कि उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, क्योंकि हमने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि एकदम कोई 70 रुपया या 50 रुपया फी लीटर फ्यूल की कीमतों में कमी आ जाती है। तो देखा ये जा रहा है कि यहाँ पे के जो किराए हैं एक दफ़ा बढ़ जाएं, जो बसों के किराए हैं वो एक दफ़ा बढ़ जाएं, या अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर दोबारा नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। इस टाइम देखें, वफाकी हुकूमत ने एक इक़दाम की है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। ताहम इस पे बाद में जो महंगाई को कंट्रोल करना या महंगाई को एक दायरेकार में रखना, ये सूबाई हुकूमतों का काम है और इंतज़ामिया का काम है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो चीज़ें पेट्रोल महंगा होने के बाद जो कीमतें थी, जो पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो कीमतें हैं यकसा हैं, कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। जो अंडा फी दर्जन 280 रुपये में खरीद रहे थे, अब भी वो 280 रुपये में, कोई खातिर ख्वाह उसमें फ़र्क नहीं आया। ताहम जो शहरी हैं बरहा यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, DCs हैं, ACs हैं, और उनसे मुतालबा करिए कि खुदारा कीमतों में इस्तेकाम लाएं और किरदार अदा करें, सड़कों पे आ जाएं और मार्केटों को देखें कि क्या सूरत हाल है मार्केटों में, आया मार्केटों में कोई कमी आई है या नहीं आई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतों में इस्तेकाम आई है या नहीं आई है। लेकिन इस तरह कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जिले इंतजामिया को इकदाम करने पड़ेंगे, जो प्राइस कंट्रोल शहरी तो बेचारे मुतालबा ही कर सकते हैं और शहरी क्या ही कर सकते हैं। हमारे साथ रहे अब्दुल्ला मगजी, आप हमें कोयटा से अपडेट कर रहे थे, जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। नवाब शेर, आप बताइएगा, कराची में और कोयटा में तो ये सूरत हाल है, कोई नुमाया कमी नहीं आई, ना किरायों के अंदर ना ही अशिया खुरनोश के अंदर। पेशावर में क्या सूरत हाल है? पेशावर में भी यही सूरत हाल है जो कराची और कोयटा में भी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी आई है, लेकिन उनके समरात अभी तक जो है वो आवाम को नहीं मिल सके और महंगाई उसी तरह बदस्तूर उरूज पर है। अगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतों को भी पर लग चुके हैं। इसी तरह अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उनके किरायों में कोई कमी नहीं की गई है। और अब भी पेशावर के मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां भी जो है वो 100 से लेकर 150 रुपये और 200 और 300 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले चंद दिनों के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 305 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर 345 रुपये फी किलोग्राम तक हो गई है। चाहिए तो ये था कि ये मजीद इनकी कीमतें कम हो जाती, लेकिन रोज़ बरोज़ जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा होता जा रहा है, लेकिन आवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया मुतल्लिका इदारे जो है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और अभी तक कोई एक्शन जो है वो इसके खिलाफ नहीं लिया गया। और जिस तरह कि आपने बता दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर 1 या 2 रुपये इजाफा होता है तो अगले ही दिन हम देखते हैं कि खुद साख्ता जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने भी किराया बढ़ाया होता है। चाहे दुकानदारों को देखे तो उन लोगों ने भी जो है वो रेट बढ़ाए होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों रेट बढ़ाए तो उधर से कहा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है तो हमने कीमतें बढ़ाई है। लेकिन जब कीमतें कम होती है और फिर वही ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों से जब पूछा जाता है कि अब उनकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, आप रेट क्यों नहीं कम कर रहे, तो वो आगे से कह देते हैं कि अभी तक कोई हमें सरकारी नरखनामा मौसूल नहीं हुआ, यही वजह है कि हम जो है वो इसी पुराने रेट पर जो है सारी चीजें फरोख्त कर रहे हैं। तो अभी तक जो है वो मुतल्लिका इदारे ये बताइए, तो ये अशिया खुरनोश की अगर बात कर लूँ, बेसिक सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं, अंडा, दूध, रोटी कीमत में कमी हुई है? जी बिल्कुल साइम, न रोटी की कीमतों में कमी आई है, न सब्जियों की कीमतों में कोई कमी आई है, न गोश्त की कीमतों में कोई कमी आई है, न अंडों की कीमतों में कमी आई है।
उसी तरह बदस्तूर उनकी कीमतें महंगी से महंगी है और महंगाई जो है वो उरूज पर है। शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन उनको जो है वो समरात अभी तक मिल नहीं सके। और जिस तरह के मैंने बता दिया है कि जो कम से कम सब्जी का जो रेट है वो 100 रुपये फी किलोग्राम है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो 200-300 रुपये कुछ सब्जियां जो है वो 300 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह अगर फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट लेना भी जो है वो आवाम के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी वो ख्वाब ही फ्रूट खाने को देख सकते हैं, क्योंकि आम की जो फी किलोग्राम कीमत है वो 170 से लेकर 300 और 400 रुपये फी किलोग्राम है। इसी तरह सेब की बात की जाए, सेब भी जो है वो 300, 350 और 400 रुपये फी किलोग्राम है। तो फ्रूट की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा है। घी, चीनी, आटा महंगा, वो तो पहले से ही महंगा है और उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं आई। इसी तरह अगर दालों की बात की जाए तो दालों की कीमतों में भी कोई कमी नहीं आई। और जिस तरह की मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्टर ज़राअत जो है वो अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये इजाफा कर दिया जाता है तो वो 10, 20, 30 रुपये जो है वो खुद से बढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्ट के किराए में। लेकिन अभी तक जो है वो ट्रांसपोर्ट का किराया कोई भी कम नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 3 दफा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। कोई तकरीबन 80 से ज्यादा बनते हैं, यानी तकरीबन 90 रुपए बनते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और न ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी की गई है, न अरशाई खुर्दनोश की कीमतों में कोई कमी की गई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें उनमें इजाफा जो हुआ है और जो अब कमी हो रही है ना, तो उनके समरात जो है आवाम को नहीं मिल रहे हैं। तक पहुंचने चाहिए। बहुत शुक्रिया नवाब शेर इरशाद और अब्दुल्ला मगसी हमें अपडेट कर रहे थे। बात यह है, अपने व्यूअर्स बता दूं कि मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने तो आप तक रिलीफ पहुंचा दिया है, ट्रांसफर कर दिया है पेट्रोल की कीमतों में गुज़िश्ता फ्राइडे को 74 रुपए कमी करके। अब यहां पर किरदार आता है मकामी हुकूमतों का। क्यों नहीं एसीज और डीसीज फील्ड में जाके इस बात को यकीनी बना रहे कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी हो, अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी हो, सब्जी में कमी हो, फलों की कीमतों में कमी हो, दूध दही की कीमतों में कमी हो। यहां पर इंतजामिया मुतहरिक हमें नजर आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही। फ्राइडे से आज मंडे है, मतलब 3 दिन गुजर गए और अभी तक पेट्रोलियम कीमतों का जो रिलीफ था, जो कमी का रिलीफ था, वो हम देख रहे हैं कि आवाम तक लोकली वो ट्रांसफर नहीं हुआ, विच इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट।